Hello everyone. This is the next lecture on distributed operating system. In this lecture, we are going to cover threads. After that, motivation of using threads. After that, we'll study models of organizing thread, which are dispatcher worker model and team model. Okay. So thread is basically a part of process management, right? So we already covered process allocation and process migration in previous video. You can check that video also. In this video, we are going to cover threads and the types and models of threads. Okay, so we'll see one by one. So basically, the first topic is threads. So what is thread? A thread is the entity within a process that can be scheduled for execution. All threads of a process share its virtual address space and the system resource. ओके सो बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज थ्रेड, राइट? थ्रेड क्या होता है? सो अ थ्रेड पहले हमें प्रोसेस का पता है. इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी कवर्ड द प्रोसेस, राइट? सो नाउ व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. प्रोसेस का एक पार्ट होता है थ्रेड. ओके, ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस. Always remember that thread is the part of the process and each thread belongs to exactly one process. So thread क्या है? थ्रेड जो है वो प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है? और हर एक थ्रेड जो है वो ऑलवेज एक प्रोसेस के साथ बिलोंग करता है, मतलब वो किसी भी प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है? So a thread is the entity within a process that can be scheduled for execution. Okay, all the thread of the process share its virtual address space and system resources. जितने number of threads हैं वो virtual address share करेंगे और जो system के resources हैं they will share them. Okay, so next one is allow a single application to do many things at once and simpler programming model and less waiting. Simpler programming model and less waiting. मतलब इससे क्या होता है, किसी भी थ्रेड जो है वो अलाउ करता है एक सिंपल एप्लीकेशन को बहुत सारे टास्क एक टाइम पे करने के लिए. थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय. थ्रेड्स क्या है? फास्टर है और इनको लाइक डिस्ट्रॉय भी इजीली कर सकते हैं. नो सेपरेट एड्रेस स्पेस, इनको कोई अलग से स्पेस नहीं चाहिए होता है. दैट्स व्हाई वी कैन इजीली क्रिएट द थ्रेड एंड वी कैन इजीली डिस्ट्रॉय द थ्रेड्स. ओके, आफ्टर दैट threads are a popular way to improve application performance through parallelism. So जो threads हैं उसके थ्रू हम application performance को improve कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें parallelism use होता है, मतलब parallelly हम threads को execute कर सकते हैं. In traditional operating system, the basic unit of CPU utilization is a process. Each process has its own program counter and its own register states, its own stacks and its own address space. Okay. On other hand, in operating system with thread facility, the basic unit of CPU utilization in thread is a thread. In these operating system, a processor consists of an address space and one more threads of control. So each thread of a process has its own program counter. तो जैसे प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर होता है, हर एक थ्रेड का भी अपना एक प्रोग्राम काउंटर होता है. इट हैज इट्स ओन स्टैक, उसका अपना एक स्टैक होता है. But all the thread of the process share the same address space. So basically thread is the part of a process, right? So the address of the process are shared by the threads. So process में जितने number of threads होंगे they will share the same address. Okay, hence also they share the same global variable. Okay. In addition, all the thread of the process also share the same set of operating system resources, okay, such as open files, child processes, semaphores, signals, accounting information, and so on. Due to sharing of the address space, there is no protection between the thread of the process. So basically, in very simple term, I can explain you that thread is a part of the process. Okay, so each thread belongs to exactly one process. Okay. Thread can share common data, so they don't need to use inter-process communication. Like processes, thread also have state. Okay, जैसे कि processes के states होते हैं ना, we can provide them states like ready state, read state, executing state, block state. We same provide the states to thread. Okay, and we can also provide the priority. Okay, we can set the priority of the threads, and the priority with the thread with highest priority will work
first. Okay, remember these 4 or 5 lines for threads. Okay, so here is a single thread and multi-thread processes. A single thread process is corresponding to process of ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस स्पेस है, इसमें एक ही थ्रेड है. ये क्या था, जो ट्रेडिशनल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें सिंगल थ्रेड जब यूज करते थे वो है ये. एंड सेकंड डायग्राम में इट्स अ मल्टी थ्रेडेड. मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है, इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक एंड वेटिंग सेकंड थ्रेड इन सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट. मतलब इसमें क्या होगा, मल्टी थ्रेड में यहाँ पे आपको कितनी थ्रेड्स दिख रहे हैं, दीज आर 3 थ्रेड्स, राइट. इफ एक जो थ्रेड है ये ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है और हो सकता है वो फेल्ड हो जाए, तो जो सेकंड थ्रेड है और जो सेकंड जो बचे हुए थ्रेड्स हैं दे विल डू द सेम प्रोसेस और दे विल एग्जीक्यूट द सेम प्रोसेस. ओके, however this is not a problem. Protection between processes needed because different processes may belong to different user, but the process is always owned by a single user. Okay, so अगर प्रोसेसेस क्या होगी, अगर प्रोसेस जो है वो एक सिंगल ओनर उसको एक्सेस कर रहा है तो थ्रेड क्या है, थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो दे ऑटोमेटिकली एंड दे अल्टीमेटली ओन्ड बाय अ सिंगल यूजर. ओके, thread provides better responsiveness, resource sharing, economy and better utilization of multiprocessor architecture. Okay, so जो threads हैं वो better responsiveness provide करते हैं, resource sharing अच्छी होती है, better utilization होती है multiprocessor architecture में threads की. Okay, okay, so motivation of using threads. So the main motivation for using a multi-thread process instead of multiple single thread process for performing some computational activities are as follows. Okay, so जो main motivation है multi thread को use करने की instead of single thread processes, उसके लिए हमें जो ये एक्टिविटीज है दी गई है ये हमें देखनी पड़ती हैं. द ओवरहेड इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेसेस आर जर्नल कंसिडरेबली ग्रेटर देन दोज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड विद इन अ प्रोसेस. ओके, सो क्या है, द ओवरहेड इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस. जब हम न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं आर इन जनरली कंसिडरेबल ग्रेटर देन दोज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड विद इन अ प्रोसेस. सो जो न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए ओवरहेड होता है उतना ओवरहेड हमें न्यू थ्रेड को प्रोसेस करने में नहीं होता है. उसका जो प्रोसेस है, उस जो प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हमें ओवरहेड लगता है वो ग्रेटर देन होता है न्यू थ्रेड को जनरेट करने के लिए. ओके, सो स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस इज कंसिडरेबली चीपर देन स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस दैट हैव देयर ओन एड्रेस स्पेसेस. सो स्विचिंग करना बिटवीन द थ्रेड जो कि सेम एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहे हैं ज्यादा चीपर होता है एज कंपेयर टू प्रोसेसेस, क्योंकि प्रोसेसेस के अपने अपने अलग अलग एड्रेस स्पेस होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 प्रोसेसेस. ओके, हर एक प्रोसेस का क्या है, अपना एड्रेस स्पेस है, राइट. और जो थ्रेड्स हैं वो एक प्रोसेस के अंदर है, उनका एक वो जो प्रोसेस का एड्रेस स्पेस है सभी थ्रेड जो है वो ही एक्सेस करेंगे, राइट. सो अल्टीमेटली चीपर कौन सा हुआ, द थ्रेड वन. जो प्रोसेस के अंदर थ्रेड जो है वो मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं वो ज्यादा चीपर हुआ ना. ठीक है, thread allow parallelism to combine with sequential execution and blocking system calls. Parallelism improve performance and blocking system call make programmer easier. So thread क्या करता है, parallelism अलाउ करता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया साइमल्टेनियसली पैरेलली जो है वो हम थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना. तो उससे क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी क्योंकि पैरेलली काम हो रहा है और सिस्टम जो कॉल्स है अगर ब्लॉक हो रही हैं उनको प्रोग्रामर्स को ज्यादा बार बार कॉल्स नहीं आ रही है तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली द प्रोग्रामर विल डू हिज वर्क एफिशिएंटली एंड द परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव, राइट. After that, resource sharing can be achieved more efficiently and naturally between thread of a process than between processes because all thread of process share the same address space. Resource sharing किसमें ज्यादा अच्छी होगी, अल्टीमेटली थ्रेड्स में, राइट. क्योंकि प्रोसेस एक है, थ्रेड्स मल्टीपल है. ओके, सो उसी को रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड्स यूज कर रहे हैं और प्रोसेसेस क्या है, अलग अलग चीजें हैं. तो वो अपना उनका अपना अपना मेमोरी स्पेस है. तो बेसिकली क्या होगा, शेयर्ड मेमोरी है तो और सेम एड्रेस स्पेस है तो थ्रेड ज्यादा इजिली जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे. ओके,
So next are the model for organizing threads. Okay, so depending on an application needs, the thread of a process of application can be organized in different way. Three commonly used way to organize the thread of a process are as follows. So first one is dispatcher worker model. So पहले हम diagram देखते हैं, after that we'll go to definition part. Okay, so first one is the dispatcher worker model. Okay, so dispatcher वर्कर मॉडल में क्या है, दिस इज वन प्रोसेस, राइट. प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड्स. सो बेसिकली थ्रेड्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसेस, राइट. सो इसमें क्या आ रहा है, एक डिस्पैचर थ्रेड है एंड दीज आर द वर्कर थ्रेड्स. ओके, सो ये बेसिकली क्या है, जैसे हमारा सिंगल डिस्पैचर थ्रेड्स होते थे ना, पुराना डिस्पैचर लाइक सेंट्रलाइज सिस्टम होते थे, वैसा है ये. तो इसमें क्या है, एक डिस्पैचर थ्रेड होगा और बाकी जो होंगे वो वर्कर थ्रेड्स होंगे. ठीक है. सो डिस्पैचर थ्रेड क्या करेगा, द डिस्पैचर थ्रेड विल रिक्वेस्ट वन ऑफ द फ्री वर्कर थ्रेड्स. इसमें से जो वर्कर थ्रेड फ्री है उसको वो रिक्वेस्ट करेगा काम करने के लिए. ईच वर्कर थ्रेड वर्क ऑन अ डिफरेंट क्लाइंट्स. हर एक जो थ्रेड्स है वो अलग अलग क्लाइंट पे काम कर रहे हैं. ठीक है. तो डिस्पैचर किसको कॉल करेगा, ही विल कॉल द फ्री वर्कर थ्रेड कि उसको क्या काम करवाना है. ठीक है. सो जब वो इसको कॉल करेगा तो ये जो सिस्टम, ये जो थ्रेड है ये आइडल कंडीशन में नहीं होंगे, ये ऑलरेडी किसी रिक्वेस्ट पे काम कर रहे होंगे, राइट. और हर एक जो वर्कर थ्रेड है वो डिफरेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा होगा. ठीक है. सो ये हो गया हमारा डिस्पैचर वर्कर मॉडल. सो इन दिस मॉडल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल डिस्पैचर थ्रेड एंड मल्टीपल वर्कर थ्रेड. The dispatcher the request to one of the free worker thread for further processing of the request. Each worker thread work on a different client request, therefore multiple client requests can be processed in parallel. So parallel का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, what is the meaning of parallel processing in dispatcher worker model? Means the worker models, all the worker models are working on different client request. Okay, so dispatcher thread will check that which worker thread is free. Okay, so if the worker thread A is free, then dispatcher will request this worker thread for further processing of the request. Okay, so यहाँ से एक request आई है, इस पोर्ट पे एक request आई है and dispatcher thread will firstly check that which worker thread is free. Okay, so if this worker thread is free, dispatcher will directly request to this dispatcher that please work on this request. Okay, so this worker thread will work on that particular request and reply back to dispatcher thread and the processing will be completed. So this is a server process for processing incoming request. तो क्या है, ये एक सर्वर प्रोसेस है. सर्वर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही है, किसी पोर्ट के लिए, किसी हो सकता है किसी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आ रही हो. सो दिस होल एक्ट एज अ प्रोसेस एंड दीज आर द थ्रेड्स. These are the different threads and dispatcher thread will be work as a you can say that head dispatcher who will communicate with worker dispatchers and firstly check which thread is free and request him for work for this request, right. ये जो request आ रही है, okay, मैं हिंदी मैं बिल्कुल नॉर्मल उसमें एक्सप्लेन करती हूँ पहले आपको. सो ये पूरा जो है ये क्या है, एक दिस इज द रिक्वेस्ट प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस है. ठीक है. उसमें क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं. ठीक है. नंबर ऑफ थ्रेड्स जैसे हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं, राइट. और ये जो नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं दे आर यूजिंग अ सिंगल एड्रेस स्पेस. ओके, सो अब क्या है, रिक्वेस्ट आ रही है किसी पोर्ट के लिए, किसी नंबर के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो पहले किसके पास जाएगी, डिस्पैचर थ्रेड के पास. ओके, सो डिस्पैचर थ्रेड पहले चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा जो वर्कर थ्रेड है वो फ्री है. सो ये हो गए वर्कर थ्रेड एंड दिस इज द डिस्पैचर थ्रेड. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आप इसको एज अ मैनेजर कंसीडर कर लो और इसको एक वर्कर कंसीडर कर लो. ठीक है. तो जब कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती है तो मैनेजर क्या करता है, चेक करता है कि कौन सा वर्कर जो है किस काम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. ठीक है. तो जो वर्कर उसको ज़्यादा इजी लगता है कि ठीक है ये ज़्यादा फ्री है, मैं इसको ये काम दे सकता हूँ, वो फर्दर इस पे पूरा प्रोसेसिंग कर सकता है, तो डिस्पैचर किसको काम देगा, जो मैनेजर है वो किसको काम देगा, वर्कर ए को. सो सेम इम्प्लाइज हेयर, डिस्पैचर थ्रेड विल चेक फॉर फ्री वर्कर थ्रेड, और जिसका थ्रेड पहले चेक हो जाएगा उसको ये
काम दे देगा। ओके, सो दिस इज द डिस्पैचर वर्कर मॉडल। ओके एंड ये वर्कर थ्रेड, ये जो है मैंने ओनली पिक्स ही उठाई है, खुद से नहीं ली है, ये मैंने कहीं से रेफरेंस उठाया है। सो ये देख के डर ना जाए कि यहाँ पे वर्कर थ्रेड लिखा है एंड ऑल। सो दिस इज बेसिकली अ थ्रेड। ओके, दीज आर द वर्कर थ्रेड्स। सो these pictures I have taken from the google.com and these have some references. So यहाँ पे मत जाइए, जो मैंने आपको बताया that are these are the dispatcher thread and these are the worker threads. Okay, so next is T model. So in this model, all threads behave as equal in the sense that there is no dispatcher worker relationship for processing client requests. Each thread gets and processes client requests on its own. The model is often used for implementing specialized thread within a process. That says, each thread of the process is specialized in servicing a specific type of request. Therefore, multiple types of requests can be simultaneously handled by the processes. Okay, so इसमें क्या होगा, इसमें डिस्पैचर वर्कर रिलेशनशिप यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो थ्रेड्स होते हैं वो अपनी अपनी अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेसेस पे काम, जो रिक्वेस्टेस होते हैं उन पे काम करते हैं। वो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है वो खुद लेते हैं एंड खुद उन पे प्रोसेस करते हैं एंड जो रिस्पॉन्स है उसको भेजते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये कौन सी ये कौन सा थ्रेड हुआ, जो स्पेशलाइज थ्रेड्स हैं, ये बहुत ही लाइक अपना आप बोल सकते हैं कि बिना किसी की हेल्प के ये थ्रेड जो होते हैं वो रिक्वेस्ट पे काम कर लेते हैं। ठीक है, सो इनको हम एक स्पेशलाइज थ्रेड भी बोल सकते हैं। जो प्रोसेस के अंदर स्पेशलाइज थ्रेड्स होते हैं ना, वो होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उसमें कुछ एक आध ऐसा भी होता है ना जो अपने आप इनिशिएट करता है चीज़ों को और खुद हैंडल करता है, राइट। सो वैसा ही यहाँ पे होता है। ये जो होती है वो स्पेशलाइज्ड जो थ्रेड्स होती हैं एक प्रोसेस के अंदर होती हैं। इनमें क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगा एंड द रिक्वेस्ट विल ट्रांसफर्ड और यू कैन से ब्रॉडकास्ट टू एवरी थ्रेड। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आई है एंड हर एक के पास गई है वो रिक्वेस्ट, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट। एंड ई सर्वर प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग इनकम रिक्वेस्ट दैट मे बी 3 डिफरेंट टाइप्स, ईच टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट बीइंग बी हैंडल्ड बाय थ्रेड। सो इसमें क्या होगा, एक रिक्वेस्ट आएगी, उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, राइट। अगर ये हो सकता है कि रिक्वेस्ट आ रही है, उसको नेटवर्क एड्रेस भी चाहिए, ओके, उसकी SSID भी चाहिए, ओके, उसका हो सकता है कुछ और सिस्टम का कुछ और रिलेटेड पैकेट्स की डिटेल भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टाइप जो है वो थ्रेड उठा लेंगे उनको। मान लीजिए थ्रेड 1 है वो नेटवर्क आईडीज को प्रोवाइड कर सकता है, टाइप 2 जो थ्रेड 2 जो है उसको SSID प्रोवाइड कर सकता है, टाइप 3 है वो उसको IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप वो जो थ्रेड्स हैं वो रिक्वेस्ट के ऊपर काम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज पाइपलाइन मॉडल। दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल, so in which the output data generated by one part of the application is used as the input for another part of the application. In this model, the threads of the process are organized as a pipeline so that the input data generated by the first thread is used by processing by the second thread. The output of the second thread is used for processing by the third thread and so on. The output of the last thread in the pipeline is the final output of the process to which the thread belongs. Okay, so इसमें क्या होगा, जो request आया, then when the first request came, it goes to the first thread. Okay, so first thread उस पे काम करेगा and it send back to it send to the next thread. Okay, so ये क्या करेगा, इस पे काम करेगा और ये नेक्स्ट थ्रेड को उसका जो भी उसने प्रोसेसिंग किया है इट विल सेंड टू नेक्स्ट थ्रेड। ओके, नेक्स्ट थ्रेड उस पे काम करेगा एंड इट विल सेंड टू द नेक्स्ट थ्रेड, दैट इज थ्रेड 3, वो भी उस पे काम करेगा और जो फाइनल उनका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आउटपुट आएगी ना, उसको हम एज अ फाइनल आउटपुट उठाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, a server process for processing incoming request. Each request processed in 3 steps, each step handled by different thread and output of one step is used into the next step. Means इस thread की जो output आ रही है it is used as a input to next thread. Okay, so basically pipeline का काम है। pipeline में क्या होता है, एक चीज जहां पे खत्म होती है वहां से फिर शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है, फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल हम लोग नॉर्मल आजकल का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग पाइपलाइन जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम लोग पाइपलाइनिंग का काम करवाते हैं। तो क्या होता है, ज्वाइंट्स लगे होते हैं ना, एक जगह पे यहाँ से पानी खत्म होगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से खत्म। बिल्डिंग्स में आप देख सकते हैं
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आपने क्या किया होता है, पानी ज्वाइंट होता है ना आपका हर जगह पे, पाइपलाइंस के थ्रू ज्वाइंट होता है। ओके, यहाँ का पानी यहाँ से ज्वाइंट होके यहाँ पे जाएगा। कितने नंबर ऑफ घर होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो वो ज्वाइंट्स के थ्रू ही पानी जाता है ना, ऐसा होता है ना। और जहां तक बात आई पाइपलाइंस की, यहाँ पे क्या होगा, एक थ्रेड है, उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे थ्रेड के लिए इनपुट का काम करेगा। ओके, अंडरस्टूड। सो बेसिकली दिस इज द वेरी यू कैन से दैट यूजफुल फॉर एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम मॉडल आता है। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया, आफ्टर दैट कंज्यूमर विल कंज्यूम इट, राइट। तो पाइपलाइन मॉडल जो है वहां पे काम आएगा। ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज वर्चुअलाइजेशन। ओके, पहले हम एक बार थ्रेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, बहुत एलैबोरेट करके हमने डिस्कस किया है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो थ्रेड इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस। जो हर एक प्रोसेस है वो एटलीस्ट एक प्रोसेस के से बिलोंग तो करेगी ही करेगी। ओके, थ्रेड कैन बी शेयर अमंग डेटा, जो थ्रेड है वो कॉमन डेटा शेयर करेगी, उनकी कॉमन मेमोरी होगी, कॉमन एड्रेस स्पेस होगा, सो दे डोंट नीड टू बी यूज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका सेम एड्रेस स्पेस होगा, जो प्रोसेस का स्पेस होगा, एड्रेस स्पेस होगा, वो ही उसकी थ्रेड्स का एड्रेस स्पेस होगा। ओके, लाइक द प्रोसेसेस थ्रेड कैन ऑल्सो हैव स्टेट्स। प्रोसेस की क्या हो सकती है, स्टेट्स, थ्रेड की भी तो स्टेट हो सकती है ना, लाइक रीड, राइट, ब्लॉक, ये सारी स्टेट्स हो सकती हैं। एंड वी ऑल्सो कैन सेट द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, सो द हाइएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस विल द thread with highest priority will work first. Okay, so there are some advantages, you can say the threads are light weighted, we can say that threads are light weighted as compared to processes. Okay, or you can say that new thread creation take less time as compared to processes. अगर आपको कोई न्यू थ्रेड बनाना है तो as compared to processes वो कम टाइम लेगा। ओके, आफ्टर दैट अगर आपको कोई थ्रेड को रिमूव करना है और उसको ब्लॉक करना है, कुछ भी करना है, उसको टर्मिनेट करना है, तो वो भी जो है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग कम टाइम लेगी। ओके, एंड मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में तो क्या होता है, इफ वन थ्रेड इज ब्लॉक एंड इन वेटिंग कंडीशन देन सेकेंड थ्रेड विल एग्जीक्यूट द सेम प्रोसेस। ओके, सो ये हो गया थ्रेड के बारे में। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन का नॉर्मल टर्म में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअली हम कोई चीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वीएम्स यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन्स यूज करते हैं, एक ही मशीन पे लाइक हम लोगों ने विंडो, मान लीजिए ये जो सिस्टम अभी हम लोग यूज करें इस पे विंडो 10 चल रही है, एंड फॉर सम कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे मैं विंडो 10 यूज नहीं कर सकती, I have to use Linux और I have to use that Windows 7 और कुछ भी, तो एक ही सिस्टम पे अगर हमें दो विंडोज डालनी होगी तो हम कैसे डाल सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन, और उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअलाइजेशन। ओके, सो थ्रेड एंड प्रोसेस कैन बी सीन एज अ वे टू डू मोर थिंग एट द सेम टाइम। इन इफेक्टिव दे अलाउ अस बिल्ड प्रोग्राम दैट अपीयर टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। तो क्या इसका क्या मतलब होगा, इनफैक्ट दे आल्सो बिल्ड प्रोग्राम दैट अपीयर टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। उसमें क्या होगा, हम साइमल्टेनियसली ये मशीन पे भी काम कर सकते हैं एंड वीएम पे भी काम कर सकते हैं। ऑन अ सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर दिस साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन इज फॉर ऑफ कोर्स एन इल्यूजन, as there is only a single CPU, only one instruction from a single thread process will be executed at a time. Okay, by rapidly switching between threads and processes the illusion of parallelism is created. This separation between having a single CPU and being able to pretend there are more can be extended to other sources as well, leading to what is known as resource utilization. Okay, virtualization. तो रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि लाइक सीपीयू एक है, राइट, एंड वी आर यूजिंग द सेकेंड विंडो ऑन वीएम, तो सीपीयू तो कौन सा एक्सेस हो रहा है, वन ना, रिसोर्स तो एक ही हुआ, राइट। तो जो मेन विंडो है इस सिस्टम की वो भी वही सीपीयू यूज कर रहा है, and the window on virtual machine is also using the same CPU, right? तो इसका क्या मतलब है, इट्स अ रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन। आपको ऐसा लग रहा है लाइक
आप जो है वो साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली दो काम तो हो ही नहीं। एक टाइम पे आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, एक टाइम पे आप अपना लिनक्स यूज कर रहे हैं, राइट? So this virtualization has been applied for many decades but has received renewed interest as computer systems have been become more commonplace and complex, leading to situation that application software is mostly always outliving its underlying system software and hardware. Okay, कुछ टाइम से, जब से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आए हैं, तब से जो वर्चुअलाइजेशन और साइमल्टेनियस काम है जो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। पहले क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम थे तो इन चीज़ों का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, बट जब से ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आए हैं तब से ये चीज़ें जो है करना वो कॉम्प्लेक्स हो गया है बहुत ज़्यादा। हमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहाँ पे वर्चुअलाइजेशन हमें करना पड़ता है, राइट? So every computer system offer a programming interface to higher level software as shown in figure. अभी next slide में हम figure देखेंगे. There are many different type of interfaces ranging from the basic instruction set to offered by the CPU to the vast collection of application programming interface. They are shipped with many current middleware system. So this is the diagram. Okay. So इसमें क्या है, देखिए पहले क्या है, प्रोग्राम है, उसके बाद इंटरफेस ए है, आफ्टर दैट हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ए है, राइट? ये क्या है, एक नॉर्मल आप बोल सकते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है। बट वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इट्स इंटरफेस ए, ओके, इम्प्लीमेंटेड ऑफ मिमिकिंग ए एंड बी, राइट? फिर उसके बाद क्या है, इंटरफेस बी। इसमें क्या है, दो इंटरफेस काम कर रहे हैं, राइट? इंटरफेस एंड इंटरफेस बी। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है एक्चुअल में, दैट इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम बी। In its essence, virtualization deal with the extending or replacing an existing interface so as to mimic the behavior of the another system. Okay, so basically virtualization का मतलब ही क्या है, virtualization हम use तो वही resources कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि resources तो हम लोग अंदर use कर रहे हैं, बट system तो हम same ही use कर रहे हैं ना, तो that is virtualization. Okay, okay, architectures of virtual machine. There are many different ways in which virtualization can be realized in practice. To understand the difference in virtualization, it is important to realize the computer system generally offer 4 different types of interface at 4 different levels. Okay, the first one is an interface between the hardware and the software consisting of machine instructions that can be invoked by the program. An interface between the hardware and the software, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर बीच में जो एक इंटरफेस है कंसिस्टिंग ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर मशीन इंस्ट्रक्शन है, किसने उनको इन्वोक किया है, एक सिंगल प्रोग्राम ने, किसी एक प्रोग्राम ने जो इंस्ट्रक्शन को इन्वोक किया है मशीन की किसी इंस्ट्रक्शन को, कहाँ है वो, द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द software. Okay, the second point is an interface between the hardware and the software consisting of machine instructions that can be invoked by a privileged program such as an operating system. Single क्या है, पहला क्या है, कौन सी इंस्ट्रक्शन जिनको कोई भी any program can invoke them, right? And the second point is a privilege, जिनके पास कुछ privileges है, जैसे कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राइट? उसके पास कुछ तो privilege होते हैं ना, कि क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है, जो हमारी विंडोज ये काम कर रही है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके पास ऑटोमेटिकली एक प्रिविलेज होगा ना, तो जिसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज है ना, वो ये इंस्ट्रक्शन को इन्वोक कर पाएंगे, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज एन इंटरफेस कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम कॉल एज ऑफर्ड बाय अ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ सिस्टम कॉल्स हैं, जो कुछ इंटरफेस है उनके पास सिस्टम कॉल है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया है। ओके, the fourth one is an interface consisting of library calls generally forming what is known as an application programming interface. In many cases the after mentioned system call are hidden by API. So basically API क्या है, it's a interface. API क्या काम कराता है, हमें interface provide करता है application के साथ। क्या जो मेन हम एप्लीकेशंस आजकल यूज कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से यूज कर रहे हैं, API से। API क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, बिटवीन द एप्लीकेशन एंड बिटवीन द नेटवर्क। वो सारा जो इंटरफेस का काम है दैट इज डन बाय API। ओके, तो दीज डिफरेंट टाइप आर शोन इन फिगर 3-6। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, दिस एसेंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज टू मिमिक टू द बिहेवियर ऑफ द इंटरफेस। सो फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, ओके, आफ्टर दैट क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है, उसके बाद क्या था, सिस्टम कॉल्स,
ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो कॉल की थी वो कहाँ से आएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। और जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही प्रिविलेजेस होते हैं, राइट। और जनरल इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? अपनी हार्डवेयर के पास, राइट। कोई भी प्रोग्राम जिन इंस्ट्रक्शंस को इन्वोक कर सकता है, राइट। सो ये जो सारे वेरियस इंटरफेसेस हैं वो कंप्यूटर सिस्टम जो है हमें ऑफर्ड करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। सो ये जो आज का वीडियो ये क्या था? थ्रेड से। थ्रेड पढ़े हमने। थ्रेड में क्या क्या था पढ़ा हमने? थ्रेड क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके। सो प्रोसेस। और वन मोर थिंग, थ्रेड्स पढ़ने से पहले आपको यू शुड नो व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस एलोकेशन, व्हाट आर द प्रोसेस माइग्रेशन। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें पहले ऑलरेडी कवर की हुई हैं तो आपको थ्रेड समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ओके। आफ्टर दैट वी कवर्ड द मोटिवेशन फॉर using thread. After that we covered the model for organizing thread. First one was the dispatcher worker model, second one was the team model, third one was the pipeline model, okay. After that we covered the virtualization part, okay, and architecture of virtual machine, कैसा होता है वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर। और वर्चुअल मशीन का मैं एग्जांपल, जैसे कि आपको बहुत एक इजी एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अपनी सिस्टम के अंदर दैट विंडोज भी यूज करना है और लिनक्स भी यूज करना है। सो यू कैन यूज द वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन पे आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ windows or number of operating system you can use, okay. So that's it for the today's video. If you have any questions, any queries regarding this video, like for threads or for virtual machine, you can ask me in my comment box, okay. So till then, bye.